Bismillahirrahmanirrahim. This is Furqan Hussain, and today my topic is on database project. My topic is railway station management system. In this project we have only one partner, myself Furqan Hussain and Muhammad Umair Ayaz from MIT 2B. In this project we have discussed on tables, relationships, stored procedures, views and ER diagram. So let's start this project on SQL Server. So we open, and I have already opened the SQL Server. So I have created a database on railway station management system project, like name as RSMS, railway station management project. First of all, we open on this, goes to tables, and I have created tables on this project. If you can't create a table, you cannot create a database. So I have my first table is exists train, exist stations, passengers contacts, payments, services in trains, station complete or covered, and tickets, train cancels, train status, user IDs and washroom services. So first of all, I started and open my first table, user ID. Select, right click on and go to select top 200 rows, and this is my first table. On the user ID, first name, last name, genders, age, mobile numbers, emails, city, state, pin code, password, security questions and security answers. And this is a script on this table: first name, last name, gender, mobile names and so on. So we have on edit, click on edit. So you can check every tables through select 100 of views. This is a train status. Train status means if you have a train box and if you have remaining seats in this box, you can explain on this table. Train number, for example I have a train number 1 2 3 5 6 and seat number and box 1, you have required 12 remaining seats. If you have a box 2, your remaining seats 13 and so on. You have box number B and remaining seat is 12 and so on B, and box number B and seat 10 are remaining. So then I go to next tables, station complete or covered. I have created a table on station complete. For example, you have a train number 1 2 3 and station number 25 20 15 and seat is Lord Islamabad. This is your tables, and we on discuss on this table on normalization. What is normalization? Normalization is a technique of organizing the data into multiple related tables to minimize data redundancy. What is redundancy? What is data redundancy and why should we reduce it? Data redundancy is nothing but repetition of similar data multiple places. अगर आपके पास रेपिटेशन में डाटा रेपिटेशन में अगर आप डाटा इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ डेटाबेस और इसमें
काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, लाइक एज इंसर्शन प्रॉब्लम्स, डिलीशन प्रॉब्लम्स एंड अपडेशन प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये टेबल है आपके पास, लाइक एज नाइम माई नेम फुरकान एंड लास्ट नेम, genders, males, mobile numbers. If you have a same numbers like genders, age, mobile numbers या emails numbers, you have a chances of, आपके पास काफ़ी चांस होंगे कि आपके पास ये जो डाटा है आपका डाटा का साइज़ भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से आप में डेटाबेस में काफ़ी मसले आ सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप एक अलहदा से एक इसका टेबल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास जेंडर्स, एज और मोबाइल नंबर्स के टेबल सेम आ रहे हैं तो आप उनके लिए एक अलहदा से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप उसको टेबल को क्रिएट कर सकते हैं लाइक एज जेंडर्स, एज, मोबाइल नंबर्स, तो आप उसको बआसानी से डाटा मैनेज कर सकते हैं। ठीक इसी तरह आप हमारे पास ये टेबल्स है, पेमेंट्स है। फॉर एग्जांपल, आई चेक पेमेंट्स, select top 200 rows and this is my payments tables, user id 1 2 3 4 5, genders, उसकी एज क्या है, पेमेंट आप कितनी कर रहे हैं, सिटी कौन सा है, CNIC नंबर कौन सा है, बैंक अकाउंट नंबर आपका क्या है अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं। इसी तरह आपके पास ये सारे टेबल्स आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास व्यूज़ के ऊपर जाते हैं। मैंने ये व्यूज़ क्रिएट किए हैं। फॉर एग्जांपल, यूज़र आईडी पे जाते हैं, सेलेक्ट टॉप 200, ये हमारे व्यूज़ हैं। स्टेशन कंप्लीट पे चले जाएं, चेक करें। अगर आपके कोई इशू की वजह से ट्रेन कैंसिल हो गया तो आप कैसे उसको डाटा मेंटेन कर सकते हैं। ट्रेन नंबर अगर 1 है, स्टेशन नंबर 125 नंबर पे, सिटी उसका लाहौर है, डेट, टाइम, नेम, यूज़र आईडी, तो उसको आप पैसेंजर को कांटेक्ट करके इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपकी ट्रेन नंबर, सीट नंबर ये कि ट्रेन कैंसिल हो चुकी है। इसी तरह हमने प्रोसीजर बनाए हैं। प्रोसीजर है इसमें 30 प्रोसीजर्स। जिस नाम से मैंने टेबल बनाए हैं उसी नाम से मैंने प्रोसीजर बनाए हैं। जिस तरह व्यूज़ जिस नाम से टेबल्स बनाए हैं उसी नाम से व्यूज़ हैं और उसी ही नाम से आगे इसके प्रोसीजर्स हैं। प्रोसीजर इसमें इंसर्ट प्रोसीजर्स, डिलीट और अपडेशन। फॉर एग्जांपल, एग्जिस्टेंट ट्रेन का इंसर्ट है, एग्जिस्टेंट ट्रेन का डिलीट है, प्रोसीजर अपडेशन, इसी तरह सो ऑन लाइक दिस। फॉर एग्जांपल, आई हैव ओपन दिस यूज़र आईडी आई सॉरी एग्जीक्यूट। तो आप इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको मैंने ऑलरेडी क्यूरी लगाई हुई है। तो फॉर एग्जांपल, यूज़र आईडी आपने जो भी उस टाइम डाटा इंटर किया होगा, ठीक है। अगर आप उसमें यूज़र आईडी की डाटा, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम उसका लिखते हैं, कुछ भी फुरकान है, फॉर एग्जांपल लास्ट नेम उसका लिखते हैं, जेंडर्स वगैरह, तो ये इसको आपको ओके, जब आप ओके करेंगे तो आपका ये सारा अपडेट हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, आपका सारा डाटा इंसर्ट हो जाएगा। अब इसी तरह आपका कोई चीज़ अगर आप डिलीट करना चाहते हैं इसी की, तो राइट क्लिक करें, एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर में जाएं और उसमें आपने जो वैल्यूज़ लिखनी है वो आप उसकी डिलीट कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट आईडी ही ली है, दोबारा चेक करें। आप लाजमी नहीं कि आप फर्स्ट करें, आप सेकंड, थर्ड कुछ भी ले सकते हैं।
आपको जो आपकी मन दिल करता है आप उसको आईडी को डिलीट, वो यूज़र आईडी जो आप डिलीट करना चाह रहे हैं उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे 10 टेबल्स, व्यूज़ और ये प्रोसीजर्स। उसके बाद है हमारे पास, हमने बनाई है इसकी ER डायग्राम। सॉरी, ये वर्ड पे बनाई है जिसकी वजह से। ठीक है, ये हमारे पास एक ER डायग्राम है रेलवे स्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम की। फर्स्ट ऑफ ये आप इसकी एंटिटी देख सकते हैं, ट्रेन की है, ट्रेन स्टेटस है, एक यूज़र की है, टिकट्स की है और एक पैसेंजर्स की है। इसी तरह इसके साथ रिलेशनशिप्स अटैच हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये बुक्स का कि आपने टिकट कोई बुकिंग करनी है, कैंसिलिंग, स्टार्ट कब हो रही है, स्टॉप, सिटी एंड डेट एंड टाइम। इसी तरह ये आपकी डायग्राम है। लेट्स स्टार्ट। अब हम आपको रिलेशनशिप बताते हैं जिसमें रिलेशनशिप कौन से बनने जा रहे हैं। फॉर जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि ये हमारे पास एक एंटिटी है हमारे पास ट्रेन की, और इसके साथ आगे इसकी एट्रीब्यूट्स हैं। ट्रेन है, ट्रेन नेम है, अराइवल नेम, डिपार्चर टाइम, डेट एंड टाइम, डेस्टिनेशन। इसी तरह ट्रेन स्टेटस के आगे एट्रीब्यूट्स है, ट्रेन नंबर, सीट, उसका बॉक्स नंबर की कौन सी सीट। और ये जो आपको एक अंडरलाइन ट्रेन का एट्रीब्यूट नज़र आ रहा है, ये इसको फॉर रीजन की इसमें एट्रीब्यूट यूज़ किया गया, जिस तरह ट्रेन स्टेटस में ट्रेन नंबर में किया गया है। इसी तरह यूज़र में यूज़र आईडी पे फॉर रीजन कीज़ लगाई हैं, पैसेंजर पे यूज़र आईडी पे लगाई है, इसी तरह टिकट पे यूज़र आईडी पे लगाई गई है। इसी तरह हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं आगे। ये हमारे पास एक रिलेशन है बुक का, तो ये रिलाई करता है यूज़र पे भी, टिकट पे भी और पैसेंजर्स पे भी। फॉर एग्जांपल कि अगर यूज़र ने टिकट बुक करनी है तो वो उस पर रिलाई कर रहा है, बुक पे भी। टिकट अगर वो टिकट नहीं खरीदता तो वो कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह कैंसिल है तो अगर वो कैंसिल पे नहीं करता तो ये मतलब कि ये यूज़र, टिकट और पैसेंजर्स आपस में तीनों पे रिलाई कर रहे हैं। तो ये हमारा टेंडेंसी रिलेशनशिप हुआ। तो आपने देखा कि हमारा एक SQL है रेलवे स्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक, दुआओं में याद रखिएगा सर। अल्लाह हाफिज़।